ہے وہ ٹاپک ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے. پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے 1 ویک سے بنگلہ دیش میں پروٹیسٹ ایرپٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق مور دین ڈزنس آف پیپل گاٹ لنچڈ ان بنگلہ دیش. خاص طور پہ ایک اینٹی انڈیا اور اینٹی ہندو کمپین ہمیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بھارت جو ہے وہ بنگلہ دیش پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے وہ فی الحال ڈھاکہ، چٹاگانگ، میرپور اور جو میجر ڈیولپ علاقے ہیں بنگلہ دیش کے، وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہیں ان کو روکنے میں ناکام رہی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ 12 دسمبر سے لے کر آج تک پچھلے ایک ہفتے میں کون کون سی میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور بنگلہ دیش ان ڈیولپمنٹس کو کیوں اتنا زیادہ ایمفیسائز نہیں کر سکا. اور ابھی اس ٹائم بنگلہ دیش پر پریشر بھی زیادہ ہے اور بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس ٹائم ان سارے معاملات کو سسٹین نہیں کر پائی. تو ہوا کچھ یوں ہے کہ جب پچھلے سال اگست کے مہینے میں پروٹیسٹ ایرپٹ ہوئے اور شیخ حسینہ واجد کی حکومت کولیپس ہوئی، تو وہ جو پروٹیسٹ تھے، میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، ان پروٹیسٹ میں جو بنگلہ دیش کی اسٹیبلشمنٹ، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی شامل تھی. لیکن اس سے زیادہ بنگلہ دیش میں جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا بیکاز کوٹا سسٹم پہ ایشوز آئے تھے. شیخ حسینہ واجد نے کچھ ایسے فیصلے کیے تھے گورنمنٹ جابس کو لے کے، کوٹا سسٹم کو لے کے، جس سے وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے ہیں، جو جوان جین زی کے ایک کیٹیگری میں لوگ آتے ہیں، ان کے اندر غصہ آیا اور انہوں نے ایونچولی اپنے آپ کو وہ سڑکوں پر لے آئے. ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور مور دین 1500 پیپل گاٹ انجرڈ. اب ان سارے بچوں کو پچھلے سال یہ سارے اسٹوڈنٹس کو جو لیڈ کر رہے تھے، ان صاحب کا نام جو تھا، وہ صاحب ہی از اے ویری امپورٹنٹ پرسن ان بنگلہ دیش ہسٹری، اور ہی از بیسکلی مسٹر ہادی صاحب جو تھے، عثمان ہادی صاحب. یہ بیسکلی ایک ینگ پرسن ہے، ہی از اے ویری ینگ پرسن. اور یہ جو تھے، یہ جو اگست کے مہینے میں پچھلے سال جو پروٹیسٹ ایرپٹ ہوئے ہیں اس میں ان کا رول بڑا اہم تھا اور اسٹوڈنٹس کو انہوں نے لیڈ کیا تھا. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو آنے والے ٹائم پہ بنگلہ دیش کا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کسی پروونس کا بنایا جا سکتا ہے، اتنی ان کے پاس قوت تھی. بٹ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب 12 دسمبر کو وہ ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ جب موو کر رہے تھے تو ایسے موقع پر کچھ لوگوں نے ان پر فائرنگ کی. اب جو بنگلہ دیش کا اسٹیٹ میڈیا ہے اور جو بنگلہ دیش کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے 12 دسمبر کو عثمان ہادی صاحب کے اوپر فائرنگ کی تو بیسکلی وہ لوگ جو تھے وہ شیخ حسینہ واجد کی جو پارٹی تھی، جو پہلے گورنمنٹ میں تھی، عوامی لیگ، اس کے کچھ بہت امپورٹنٹ لیڈرز تھے اور ان لیڈرز نے جو ہے وہ فائرنگ کی عثمان ہادی پہ اور ان کو زخمی کیا. اب یہ زخمی تو ہو گئے عثمان ہادی اور پھر ان کو بنگلہ دیش کے ڈیفرنٹ ہاسپٹلز میں شفٹ کیا گیا، لیکن ان کی حالت سسٹین نہیں ہوئی تو ان کو ایونچولی سنگاپور بھیجا گیا تاکہ سنگاپور جا کر وہ اپنے آپ کو اگر وہ بچا سکتی ہے. سنگاپور کے ڈاکٹرز، کیونکہ وہ بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، بڑی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز وہاں پر ہیں. بٹ ایونچولی انفارچونیٹلی عثمان ہادی جو بنگلہ دیش اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے لیڈر تھے وہ نہیں بچ سکے. اب جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے بنگلہ دیش کے اندر ایک اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ جو عوامی لیگ کے لوگوں نے عثمان ہادی پر فائرنگ کی اور ان کو اب مرڈر کر دیا، وہ زندہ نہیں ہے، اب اس دنیا سے وہ جا چکے ہیں، بیسیکلی اس کے پیچھے شیخ حسینہ واجد ہے. اور شیخ حسینہ واجد کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ شیخ حسینہ واجد صاحبہ کو اس ٹائم بھارت سپورٹ کر رہا ہے. اب اس نعرے کو لے کر پچھلے ایک ہفتے سے، پچھلے 1 ویک سے بنگلہ دیش میں ہو کیا رہا ہے وہ میں آپ کو سچویشن بتانا چاہتا ہوں. اس ٹائم بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو اینٹی ہندو پروٹیسٹ ہمیں دکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بنگلہ دیش میں اس ٹائم، اور بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو مائنورٹی کمیونٹیز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ اس ٹائم بڑے پریشان ہیں. ہمیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جو کہ ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جہاں پہ ہندو ریلیجن یا جو ویسٹرن کلچر سے ریلیٹڈ جن ایون فیمیلز نے بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو فیمیلز نے پینٹ شرٹس پہنی ہوئی ہیں، ان کی پینٹ شرٹس کو پھاڑا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، ان کو اسالٹ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ایجنٹس ہیں یہ انڈیا کے ایجنٹس ہیں. اب ہم سب کو پتا ہے کہ سارے لوگ تو اس میں شامل نہیں ہیں، دیر آر اونلی فیو پیپل جن کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ ایرپٹ ہوا ہے. لیکن بنگلہ دیش کے اندر جو اس ٹائم اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے وہ پچھلے اگست 2024 سے ہمیں دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس چیز کی وجہ سے اس ٹائم جو عثمان ہادی کو مرڈر کیا گیا، اس چیز کی بنا پر جتنے بھی اس ٹائم ہندو ہیں، خاص طور پہ
बांग्लादेश के अंदर, वो हिंदू जो हैं वो बड़े परेशान हैं और उनके खिलाफ बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इस टाइम ढाका, मीरपुर, चिटागोंग की सड़कों पर तूफान बदतमीजी हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। प्रोटेस्ट इरप्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस चीज को देखते हुए भारत की जो गवर्नमेंट है उसने बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं दिल्ली के अंदर, उनको समन किया है, उनको बुलाया है और उनको कहा है कि आपकी कंट्री में जो भारत के अगेंस्ट जो सारे मामलात दिखते हुए नजर आ रहे हैं इनको आपको खत्म करना होगा, अदरवाइज भारत और बांग्लादेश की जो ताल्लुकात ऑलरेडी कशीदगी है उसमें टेंशंस हैं वो और ज्यादा हमें टेंशंस दिखाई हुई नजर आएगी। अब अगली इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में ये है कि ये सारे मामले तो एक तरफ हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इंडिया को लेके जिससे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत परेशान है। मैं इंडियन मीडिया को पिछले 3 दिन से फॉलो कर रहा हूं और बांग्लादेश के मीडिया को भी पिछले 3 दिन से फॉलो कर रहा हूं। एक चीज मुझे समझ आ रही है कि दोनों के जो ताल्लुकात हैं अब दोनों के दरमियान दूरी हमें दिखती हुई नजर आ रही है। बट मोर इंपॉर्टेंटली इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट इस सारी चीज पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें डेवलपमेंट हुई है और वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या हुई है उसको समझना बड़ा जरूरी है। वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है 7 सिस्टर स्टेट्स जिसकी हम पिछले काफी अरसे से बात करते आ रहे हैं। हम सबको पता है कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो भारत की 7 सिस्टर स्टेट के साथ लगता है और वो जो बॉर्डर है वो पिछले काफी अरसे से एक फ्रेजिलिटी की तरफ जा रहा है और भारत को बहुत सारी परेशानी की सूरत हाल दिखती हुई नजर आ रही है। अब इस मौके से फायदा उठाया है बांग्लादेश के एक यंग लीडर जिन साहब का नाम है हसनात अब्दुल्ला साहब। हसनात अब्दुल्ला जो है ये बेसिकली बांग्लादेश नेशनल सिटीजन पार्टी के सरबराह हैं। इन्होंने बेसिकली बांग्लादेश में बैठ के 7 सिस्टर स्टेट को लेके एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो बयान दिया है। वो बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं क्या बयान उन्होंने दिया है, फिर हम अगली बात इसको करते हैं कि जो टेंशन है इस टाइम वो क्या स्टेट लेवल की तरफ से जो है वो इरप्ट करती हुई दिखाई दे रही है या जो बांग्लादेश की नेशन है, जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भारत को लेके गुस्सा दिखाई हुई नजर आ रहा है। अब सुनिएगा स्टेटमेंट्स क्या दिया है। जो हसनात अब्दुल्ला साहब है उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि ढाका कुड ऑफर रेफ्यूजी टू फोर्सेस टू इंडिया इंक्लूडिंग सेपरेट ग्रुप्स। तो बांग्लादेश जो है वो ये बात कर रहा है, बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, बांग्लादेश ये कह रहा है कि बांग्लादेश उन सेपरेट ग्रुप्स को और ऐसे लोगों को जो 7 सिस्टर स्टेट में अलहदगी चाहते हैं उस भारत के साथ, हम उनको पनाह भी देंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे। तो एक बड़ा एक ऐसा कंसर्निंग स्टेटमेंट है जो बांग्लादेश की तरफ से दिया गया और भारत की तरफ से इस टाइम बहुत ज्यादा इस चीज की तरफ से प्रेशर आ रहा है बिकॉज हमें पता है कि 7 सिस्टर स्टेट वो ऐसा इलाका है अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो आसाम और मॉइस्ट सारा जो इलाका है यहाँ पर इस टाइम कुछ ऐसे सेंटीमेंट पाए जाते हैं जो कि इंडिया से खुद को अलग समझते हैं या वो समझते हैं उनकी आइडेंटिटी इंडिया से अलग है। ऑलरेडी सारे लोग तो ऐसा नहीं चाहते बट स्टिल कुछ ऐसे लोग चाहते हैं जो भारत से अलहदगी चाहते हैं और इस चीज की वजह से जो है वो हमें एक चीज नजर आ रही है कि इस टाइम जो बांग्लादेश है वो इस चीज का फायदा उठाते हुए 7 सिस्टर स्टेट पे भी अपना हक जिताने की बात बार बार कर रहा है और भारत इस चीज को प्रेशर को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और इस चीज की वजह से आज भारत की तरफ से कुछ मिलिट्री मूवमेंट भी हमें हमारे पास ये खबरें आई हैं कि भारत की कुछ ब्रिगेड्स जो हैं, कुछ मिलिट्री मूवमेंट जो है वो आसाम और इन 7 सिस्टर स्टेट्स के जो बॉर्डर हैं, जो बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर है, इस पर भारत की जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय होते हुए दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और हो रही है कि जो इस टाइम म्यांमार है और चाइना का बॉर्डर भी इस टाइम बड़ा टेंशन की तरफ हमें दिखाया हुआ नजर आ रहा है बिकॉज म्यांमार की तरफ से भी कुछ इंसर्जेंट पिछले तकरीबन 1 साल से भारत के अंदर आके कार्रवाइयां कर रही हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश पर चाइना ने रिसेंटली अपना जो हक है वो जितलाया है। तो इस टाइम भारत की जो 7 सिस्टर स्टेट्स का इलाका है, फ्रॉम नेपाल टू भूटान टू चाइना टू म्यांमार टू बांग्लादेश, ये एक बड़ी प्रेशराइज सिचुएशन की तरफ है और बांग्लादेश में जो इस टाइम प्रोटेस्ट इरप्ट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोटेस्ट जो है ये बड़े कंसर्निंग है। जहां तक बांग्लादेश के इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन जो है वो फरवरी में बांग्लादेश का लड़ा जाएगा, लेकिन हमें जो इस टाइम एक तरह से सेंटीमेंट और एक तरह से हमें जो मैसेज मिल रहा है बांग्लादेश की स्टैब्लिशमेंट से वो ये है कि अगले प्राइम मिनिस्टर जो बांग्लादेश की होंगी वो खालिदा जिया साहिबा होंगी। ऑल्दो वो इस टाइम आईसीयू में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो या तो वो होंगी या तो उनके बेटे जो हैं
वो इलेक्शंस को लड़ेंगे, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी नॉट ईजी फॉर बांग्लादेश गवर्नमेंट। और इस चीज़ की वजह से जो प्रेशर है बांग्लादेश के ऊपर वो आने वाले वक्त में हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जो इस टाइम मामलात हैं बांग्लादेश के, वो आने वाले टाइम पे और ज़्यादा हमें कंसर्निंग दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इस टाइम जो रिट है गवर्नमेंट की, वो रिट कहीं भी नज़र नहीं आ रही। स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्जी से प्रोटेस्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को जलाते हैं, घिलाते हैं, और उस चीज़ की वजह से जो है वो आम जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटी से जिनका ताल्लुक है, ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न कल्चर के साथ अपने आप को मुंसलिक करते हैं, पैंट शर्ट्स पहनते हैं, ख़ास तौर पे जो फीमेल्स भी इन लिबासों को पहनती हैं, उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, और ये सारे के सारे मामलात हमें नज़र आ रहे हैं। अगली बात सुनना बड़ा ज़रूरी है सारे मामलात में। अब बात यह है कि जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, जिसको फॉरेन मिनिस्ट्री कहते हैं, उसकी तरफ से रिसेंटली एक बड़ा अहम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो आया है। और वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि इंडियन गवर्नमेंट हैज समन्ड बांग्लादेश हाई कमिश्नर मिस्टर रियाज हमीदुल्लाह टू कन्वे स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स एट द डिटोरेशन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इन बांग्लादेश। तो मैंने आपको आज बताया कि आज भारत की कुछ मिलिट्री मूवमेंट भी हुई है, और उससे एक दिन पहले भारत ने बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं, जो भारत के डिप्लोमेटिक मिशंस पर आए हुए हैं, बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट्स, उनको रियाज साहब को बुलाया और कहा है कि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है इस टाइम इंडिया को लेके वो बड़ी कंसर्निंग है, और भारत इस चीज़ की वजह से बड़ा परेशान है। और हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि आने वाले कुछ दिनों में भारत अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा डिप्लॉय कर दे, बिकॉज इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा जो भारत के इस टाइम मामलात हैं वो सेवन सिस्टर स्टेट और बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना को लेके जो बॉर्डर है उस चीज़ को लेके बड़े कंसर्निंग है, और भारत पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। अगली बात सुनिएगा। अगली बात यह है कि जो इस टाइम स्टूडेंट्स हैं वो बार बार भारत का जो डिप्लोमेटिक मिशन है, या आप कह सकते हैं भारत का जो एम्बेसी है या जो इनक्लेव है ढाका में, वहां पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और बार बार जुलाई के अंदर जो पिछले साल एक तरह से आप रेवोल्यूशन कह लें, या एक तरह से जो एंटी शेख हसीना प्रोटेस्ट थे, उसको बार बार याद किया जा रहा है, और जुलाई यूनिटी के नाम से बार बार भारत को मॉक किया जा रहा है। भारत के जितने भी इस टाइम जो डिप्लोमेट्स हैं उनको बार बार मॉक करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से भारत के ऊपर और ज्यादा प्रेशर हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगली बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सारे मामला जो हैं वो जियोपॉलिटिकली हमें नजर आते हैं। अब जो अवामी मुस्लिम लीग है, या अवामी लीग आप कह सकते हैं, इस टाइम जो बांग्लादेश में है, उसका जो पत्ता है वो हमें साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब अवामी लीग जो है वो ऑलरेडी इलेक्शन नहीं लड़ सकती फरवरी के जो अगले साल 2026 में होने वाले हैं बांग्लादेश में, तो वो इलेक्शंस ना लड़ने की वजह से हमें एक चीज जो है वो नजर आ रही है। एक चीज हमें बड़ी आसानी से समझ आ रही है कि ये है कि अवामी लीग का जितना भी इस टाइम जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो है वो तो कट ऑफ हो गया। या वो लोग वोट नहीं देंगे, या वो लोग उन लोगों को वोट देंगे जो कि उनके लिए काम कर सकते हैं। यानी शेख हसीना वाजिद अब ताकत में तभी आ सकती हैं कि उनके हक में कोई मिलिट्री कूप हो जाए, कोई उनके हक में मिलिट्री ऐसी इंस्टॉल उनको खुद कर दे, या कोई जजेस उनके साथ मिल जाए, कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी बना दी जाए जिससे शेख हसीना दोबारा से गवर्नमेंट में आ जाए। अदर देन दैट फिलहाल पॉसिबल नहीं लगता कि शेख हसीना वाजिद दोबारा से गवर्नमेंट में आ सकती हैं। कोई कू ही उनको लेकर आ सकता है, वो भी सक्सेसफुल हो तब। अब इस सारे मामले को जब हम आगे लेकर चलते हैं तो कुछ सवालात हम सब लोगों के दिमागों में आते हैं, आपके दिमागों में भी आते हैं, क्योंकि मैं इस सारे मामले को एक हफ्ते से एनालाइज कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में भी कुछ अहम क्वेश्चंस आए हैं जो मैं पूछूंगा और मैं उनके सवाल आपको देने की कोशिश करूंगा। मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस टाइम बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अंदर, बांग्लादेश की खासतौर पर मिलिट्री के अंदर, जो वकारुज़्ज़मान आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, वहां पे एक फियर पाया जा रहा है। और वो फियर ये पाया जा रहा है कि शेख हसीना को दोबारा इंस्टॉल किया जाएगा। मैं बार बार ये आपको बात कर रहा हूं, शेख हसीना को दोबारा इंस्टॉल करे जाने का फियर अब भी पैदा होता जा रहा है। तो उस फियर को रिमूव करने के लिए बांग्लादेश की स्टैब्लिशमेंट ऐसे बयानात दिलवा रही है पॉलिटिशियन से कि आप इस तरह का कोई कदम मत लीजिएगा, कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेसी मत कीजिएगा, अदरवाइज हम आपके साथ जो सेवन सिस्टर स्टेट का जो हमारा बॉर्डर का मामला है, उस सारे के सारे मामले में हम आपके एंटी हो जाएंगे। ऑलरेडी आपका मामलात म्यांमार के बॉर्डर पे खराब है, चाइना के अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे खराब है, तो हमारे साथ भी अगर आपके मामलात खराब होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपने कोई भी प्रो शेख हसीना कू करने की कोशिश नहीं करनी। तो मेरे ख्याल से एक मैसेज दिया जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से भारत को कि भारत को इस तरह का कदम ना ले, क्योंकि इस टाइम भारत भी दो खेमों में डिवाइड है। एक जो प्रो लिबरल्स हैं, जो इस टाइम अपने ताल्लुकात को बांग्लादेश के साथ दोबारा से रीइस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भारत जो है वो शेख हसीना को या तो वापस कर दे बांग्लादेश को, या उनको
कहीं और भेज दे, भारत में उनको ना रखे। एक तो ये ताल्लुक है। लेकिन दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो राइटिस्ट हैं, जो बहुत नेशनलिस्टिक हैं, वो चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद या उनकी जो क्लोज एलाइज हैं उनको इंस्टॉल कराया जाए। तो एक तरह से इस टाइम भारत की गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा तनाव है। लेकिन ये जो बांग्लादेश की तरफ से प्रोटेस्ट इरप्ट हो रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, वी डोंट नो, बट हमें पता है कि चीज़ें किस तरह चलती हैं। जब सोशल मीडिया के दौर में किस तरह से ट्रेंडिंग होती है, जेन जी को किस तरह से काबू में लेकर आया जाता है और उनको एक चीज़ पर लगा दिया जाता है। तो अगर ये कार्रवाई बांग्लादेश की तरफ से जो है वो की जा रही है, तो एक चीज़ जो है वो हम सब लोगों को समझ आती है। वो चीज़ ये है इस टाइम कि बांग्लादेश जो है उसके ताल्लुकात भारत के साथ जो है वो खराब दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ दूसरी बहुत अहम चीज़ ये है कि बांग्लादेश जो है वो आने वाले वक्त में रीजन में खुद को दोबारा से एक आइडेंटिटी के तौर पे दिखता हुआ दिखाई देगा। और चाइना और पाकिस्तान के साथ जो उसका अलायंस है वो और ज़्यादा अलायंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। दूसरा बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या इससे आगे, यानी इससे सारे मामले से आगे बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं, क्या ये बेहतर होंगे, क्या ये वर्स होंगे? तो इसका जवाब सरासर जो है वो सिंपल है। अगर शेख हसीना वापस कर दे भारत बांग्लादेश को, तो तब तो हालात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारत फिलहाल शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश को वापस नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये है कि हालात बेहतर नहीं होंगे, मामलात हमें वर्स होते हुए दिखाई देंगे, जिससे जो मोदी साहब की जो प्रेशर है, खासतौर पर रीजन में भारत के ऊपर प्रेशर है, वो प्रेशर और ज़्यादा हमें दिखता हुआ नजर आएगा। तीसरा बड़ा अहम सवाल, जो बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, और बहुत सारे बांग्लादेश के मिलिट्री जनरल्स भी इस चीज़ को बार बार बात करने की कोशिश भी करते हैं कि क्या बांग्लादेश 7 सिस्टर स्टेट्स या जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, या जो बॉर्डर पर अटैक करने की बांग्लादेश से बार बार बात होती है, क्या बांग्लादेश 7 सिस्टर स्टेट्स भारत से कैप्चर कर सकता है, ले सकता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के पास वो मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। बांग्लादेश की एक छोटी मिलिट्री है, बांग्लादेश के पास वो आर्मर्ड ब्रिगेड्स, वो टैंक्स, वो हेलीकॉप्टर्स, इवन वो फाइटर जेट्स भी नहीं है कि वो कुछ इलाके, कुछ किलोमीटर का इलाका भी भारत से ले सकें। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ जियो पॉलिटिक्स जो है वो एक तरह से मनूवरिंग्स हैं, एक मैसेज देने की कोशिश की दी जा रही है कि भारत की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से भारत को, कि भारत जो है वो बांग्लादेश में कोई इस तरह का मनूवर ना करे, कोई इस तरह के मामलात ना करें जिससे आने वाले टाइम पे भारत और जो बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएं। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जो आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, वकारुज़्ज़मान, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी हुकूमत को, मेरी ताकत को चैलेंज मत करें, क्योंकि मैं अगले 10 या 15 साल के लिए आया हूं। शेख हसीना वाजिद एक बुजुर्ग औरत है, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है इस टाइम, तो आप मुझे स्टॉल रहने दें, मेरे खिलाफ कोई साजिश मत करें, मैं पावर में आया हूं, मैं इस तरह आसानी से नहीं जाऊंगा। तो ये डिप्लोमेटिक या एक तरह से वायलेंस इरप्ट करके, ट्रेंड्स जारी करके मैसेजेस दिए जा रहे हैं भारत को, जिसको भारत फिलहाल नहीं समझ पा रहा। बट ये कहना कबल अज़ वक्त है कि बांग्लादेश जो है वो भारत के ऊपर आने वाले टाइम पे कुछ चढ़ाई कर देगा, कोई अग्रेसिव एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा। बांग्लादेश के पास ये कैपेबिलिटी फिलहाल नहीं है। आखिरी सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और जो सवाल जियोपॉलिटिकल मैप को देखते हुए है, और वो सवाल ये कि चाइना इस सारे मामले में जीत रहा है? तो बिल्कुल चाइना इज विनिंग द गेम राइट नाउ इन 2025 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। चाइना इस सारे मामले में जीत कैसे रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। भारत अमेरिका के साथ मिलकर चाइना पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ मिलकर भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन दोनों की आपस में एक लड़ाई है। 1962 से बॉर्डर की एक डिस्प्यूट है, फिर 2017 और 2020 में भी दोनों कंट्रीज के दरमियान एक बॉर्डर डिस्प्यूट हुई। तो चाइना अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो डायरेक्टली भारत को कन्फ्रंट नहीं कर रहा। चाइना जो है वो डिफरेंट एलाइज की या डिफरेंट नए एलाइज की मदद से भारत पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है वो चाइना के साथ बिजी ना रहे, बल्कि भारत जो है वो अपने इर्द गिर्द पड़ोसियों के साथ बिजी रहे, ताकि उसको अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को कंटेन करने का मौका ही ना मिले। इसलिए आपने देखा कि आज अमेरिका ने ताइवान को $10 बिलियन की जो सेल्स हैं, आर्म सेल्स प्रोवाइड करने का फैसला किया है, बिकॉज अमेरिका को यह पता है कि साउथ एशिया की जो डायनामिक्स है, जो रीजनल इस टाइम जो मामलात हैं वो बड़े डिस्टर्बिंग हैं, और अमेरिका इतनी आसानी से चाइना को, साउथ एशिया को में खास तौर पे कंटेन नहीं कर पाएगा। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इशू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ मैटर। और एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बांग्लादेश कि वहाँ के जो लोग हैं, बेशक वो सड़कों पर निकले हैं, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है जानना, ये
समझना कि हम इस चीज़ को एक दूसरे की चीज़ से डिस्टर्ब या सेपरेट करें, क्योंकि जो बांग्लादेश में इस टाइम वायलेंस हो रहा है वो डेफिनेटली बड़ा कंडेमेबल है, जिसमें माइनॉरिटीज़ के साथ जो है वो बदतमीज़ी की जा रही है, जो ख़वातीन हैं उनके कपड़ों को फाड़ा जा रहा है, अगर किसी ने जीन्स या शर्ट पहनी हुई है तो उसके साथ बदतमीज़ी की जा रही है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी कंसर्निंग थिंग इन बांग्लादेश, और ये रेडिकलाइजेशन जो है ये सोसाइटी में बांग्लादेश की हमें इरप्ट होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि दूसरी जानिब ये बात भी सही है कि शेख हसीना वाजिद बेशक लिबरल थी, लेकिन शेख हसीना वाजिद भी अपने दौर में बहुत सख्त थी। 17 साल उन्होंने हुकूमत की 2008-9 से लेकर 2024 तक, और उन्होंने इलेक्शंस फ्रॉड किए। बेशक उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर किया, लेकिन जो उन्होंने अथॉरिटेरियनिज्म लेकर आई उससे आज हमने देखा कि बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी जनरेशन पैदा हुई है जो उस अथॉरिटेरियनिज्म को या उस सिस्टम के खिलाफ जो है वो हमें इमर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। इससे एक चीज़ हमें समझ आती है कि सख्ती से, ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई भी जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों के दिलों में अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो लोग कभी भी